As introduced by the institute, I'm from NIT Surat. Just quickly going to present some of our activities which we are going to carry out, so that if any of you is interested, can get connected. Okay. First of all, I congratulate the management and all the institute people who are involved in this faculty development program, which is now successfully running on. So let us appreciate their efforts also, okay, by giving them good clapping for arranging this wonderful program on much needed topic. I am saying about that topic. Other speakers, they must be telling about some various domains. So today I am going to talk on one important domain where many people, including we academician, I consider we all as academician and even student, unknowingly hate that topic. Okay, unknowingly we want to stay away from that topic, but at least through such a program and through such a session, if you get some exposure of that domain, definitely then some of you may start thinking in that direction. Okay, so I hope you are getting what I meant to say. Okay, quickly let us summary of my research profile, wherein some publications are there and all those things. Okay, regarding projects, this is that topic, weldability of advanced material. So by this now you should get some clarity. I am going to talk on welding domain. Okay, welding domain, particularly students जो है आपको इसमें काफी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं. Okay, so this is that Scopus profile, just for summary. These are various technical universities where I visited in last 10-12 years, where good facilities are always available, and as I said, always we should make an attempt to get exposure. आप लोग कभी भी कोई भी इवेंट ऐसा होता है या इंडस्ट्री होती है या कुछ, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. ये क्वेश्चन नहीं करना है कि मुझे वो अटेंड क्यों करना है. ओके, इवन इफ यू अटेंड इट फॉर 2-3 आवर्स, हाफ डे, डेफिनेटली आपके पास ऐसा कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है. ओके, सो ऑलवेज गो ऑन विजिटिंग. इवन आपके आजू बाजू की जो कंपनियां हैं उसमें विजिट करिए, एंड देन यू विल गेन गुड exposure. So this is some quick, these are some international journals with whom I am associated, okay, for which I am a reviewer. Okay, these are various programs which we also used to conduct. Okay, so even there are some international programs also, GIAN, Global Initiative of Academic Networks, so that also conducted. Okay, so these are some membership achievement. So there is one small achievement, but long back, when the particular professional society, they used to have that type of award every year. So in that particular year, I was recognized for that particular award given by Institution of Engineers in Mechanical Engineering domain. So this is my contact details. If you need, you may keep. Student ko bhi, there are many things available with us. So I was talking with the authorities also. So any student, if you feel, you can always contact me. ये तो हो गया my particular involvement. Now what is there for the students, okay, or any other people who are of this domain? Okay, so in our institute we developed one advanced welding laboratory. Okay, for that we started one student chapter also. We got affiliated with the Indian Institute of Welding. Okay, please see that how you get connected with some प्रोफेशनल सोसाइटीज. ओके, नेटवर्किंग, बिकॉज उनका नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसके साथ ज्वाइन हुए और देन वो नेटवर्क आप
एग्रेसिवली यूज कर सकते हैं. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को उसका अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी हुआ है, एंड देन मेनी स्टूडेंट दे आर नाउ गेटिंग विद दिस. ओके, ये मैं जो कह रहा था कि कुछ हम इंटरनेशनल इवेंट भी हमारे इंस्टीट्यूट में ही फिजिकल मोड में किए हैं. These are some other activities. Okay. So like ये जो अभी जो अटल प्रोग्राम चल रहा है, in the past also we conducted a mini such program, 10-12 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हमने कंडक्ट किए हैं. ओके, वी आर हैविंग गुड फैसिलिटीज, दीज आर आवर ओन फैसिलिटीज. ओके, कुछ प्रोजेक्ट्स है. यस, आई एम हैप्पी टू टेल अबाउट दिस वन गुड प्रोजेक्ट. ओके, लास्ट ईयर, ओके, our laboratory, okay, because of good development in this domain, we got one funded project of 2 crore rupees. Okay, again to develop that lab. Okay, and it is given by Industries Commissionerate, Government of Gujarat. Okay, Industries Commissionerate, Government of Gujarat. Okay, so आप इससे भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि even how government is interested to see that the manpower, okay, technical manpower or research manpower get developed. Okay, so through this particular project, if it is successful, definitely in the coming time the people will highly get benefited by this. Okay, patents, that is our regular activity. Even आप वो पेटेंट का भी देखेंगे तो अगर आप टाइटल देखिए, इवन हम डिसिमिलर मेटल जॉइनिंग, ओके, इलाज करके दिखाया है. ओके, डिसिमिलर मेटल, व्हाट डज इट मीन, क्या हो सकता है डिसिमिलर मेटल? वेल्डिंग नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जस्ट 2 प्लेट है और उसे हमें ज्वाइन करना है. ओके, और बहुत बार मैंने जैसे कहा कि हम एकेडमिशियन स्टूडेंट हम यही सोचते हैं कि अगर हमें वेल्डिंग डोमेन में इंटरेस्ट लेना है मतलब हमें क्या वेल्डर बनना है क्या? ऐसा नहीं है. ओके, ऐसा नहीं है. यस, देयर आर वेल्डर्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री. आप लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, ओके, यूर वर्क इज समथिंग डिफरेंट. ओके, आपका वर्क वहां पर इंडस्ट्री में कुछ अलग है. एक्चुअल वेल्डिंग करना, दैट टेक्स ओनली 10% ऑफ टाइम. टोटल टाइम जितना चाहिए ना वो जॉइंट का फाइनल कंप्लीट होने के लिए, 10% ही टाइम वेल्डिंग, एक्चुअल वेल्डिंग के लिए चाहिए. उसकी मतलब आप सोचिए कि ऑलमोस्ट 90% टाइम एक्चुअल वेल्डिंग के अलावा भी चाहिए, आइदर बिफोर वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग. वो कौन करेगा? वो तो वेल्डर नहीं करेगा. वेल्डर को तो क्या है, बस आप ड्राइंग दे दीजिए, मशीन दे दीजिए, ओके, उसको तो बस दिन भर में वो जॉइंट खत्म करना है, वो भूल जाएगा. उसे कुछ पता नहीं है कि व्हाट इज मेटल, उसका मेटलर्जी क्या है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं. ओके, सो एन इंडस्ट्री ऑल्सो डोंट वांट. आप आपके हिसाब से बस वेल्डिंग करो. अगर बिफोर एंड आफ्टर वर्क हमारे लिए अलग टीम अवेलेबल है. ओके, तो वो जो पर्टिकुलर वर्क है उसके लिए जो मैन पावर चाहिए, टेक्निकल मैन पावर, उसका बहुत स्कैरसिटी है. ओके, अवेलेबिलिटी नहीं है. बिकॉज आई यूज टू विजिट मेनी इंडस्ट्रीज और इवन हम ऐसे मल्टीपल फोरम्स पे हमारा रेगुलर मीटिंग चलते ही रहता है. तो ऑल इंडस्ट्री पीपल दे से कि हमें यंग जनरेशन को डेवलप करना है इस डोमेन में. अगेन, नॉट टू बिकम वेल्डर, वेल्डर बनने के लिए नहीं. ओके, शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो इस डोमेन में इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे, वो 2-2 महीने तक शॉप फ्लोर पे कभी जाते ही नहीं. 2-2 महीने ऐसा. ओके, अनलेस कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ ऐसे. ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स आल्सो कि ओके, नहीं तो बहुत बार वही होता है कि भाई हमें तो शॉप फ्लोर में जाना है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू पीपल आल्सो, सो दैट यू कैन आल्सो इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज डायरेक्ट यू आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट टू अदर स्टूडेंट. आप उनको बता सकते हैं कि देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, ओके, इन द वेल्डिंग डोमेन. सो ये ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो एग्रेसिवली हमें हेल्प करती है. नॉट ओनली टू अस, आप लोग भी इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली दोज विल बी अवेलेबल फॉर यू आल्सो. अगर आप सही में कुछ स्पार्क दिखाते हैं कि नहीं, यस हमारे पास कुछ स्कोप है करने के लिए, इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज रेडी. क्योंकि अभी कंसेप्ट बदल रहा है. इंडस्ट्री आर ऑल्सो नाउ इंटरेस्टेड. हमें जो चाहिए उस टाइप का मैन पावर जहाँ से मिलेगा वो वहीं से लेते हैं. ओके, अभी ब्लैंकली वो किसी कॉलेज में डायरेक्ट इंटरव्यू लेने नहीं जाते.
ब्लैंकली कि चलो कोई एक आधा टाटा या कोई L&T ऐसा कोई कंपनी ब्लैंकली आपके इंस्टीट्यूट को बोलेगा हम आ रहे हैं इस दिन, हमें इतने 10 लोग चाहिए, जो जो एलिजिबल है भेज दे। ऐसा नहीं, जो जो एलिजिबल है हमको ये डोमेन के चाहिए ऐसे है तो बताए, और उनको पता है, सब स्टूडेंट वही बोलते हैं हाँ हम उसी डोमेन के हैं, इसलिए वो ऐसा भी नहीं करते। सबको पता है, जैसा नाउ उनको कुछ बैटरी रिलेटेड मैन पावर चाहिए, बैटरी ओरिएंटेड वर्क बहुत चल रहा है, तो उनको पता है महाराष्ट्र में कौन से इंस्टीट्यूट में बैटरी रिलेटेड अच्छा वर्क होता है, बच्चे स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो उस इंस्टीट्यूट में भी वो इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, उस लैब में जाते कि हमें आपके लैब से ऐसे स्टूडेंट चाहिए। ओके, तो अगर आप फिर उनको बोलेंगे कि ठीक है हम आपको ऐसे स्टूडेंट दे सकते हैं, आप हमारे लैब के लिए और फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, ये सीधा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब इंडस्ट्री आ रही है। ओके, तो यू कैन कन्विंस देम एंड एश्योर देम कि हम आपको 2-3 साल बाद हमारे यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट इस डोमेन के रेडी हो जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया। ओके, सो दीज आर सम कुछ नाम लिखे यहाँ पे। ओके, आई विल शिफ्ट द प्रेजेंटेशन, 1 मिनट, चेंज करना है, फाइल चेंज करना है। सो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कभी आपको डाउट आता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, वन वे प्रेजेंटेशन हम अवॉइड करेंगे। माय टॉपिक एडवांसमेंट इन वेल्डिंग, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुई है ओके एट प्रेजेंट, दैट वी विल ट्राई टू। तो इसलिए इसमें हम कोई ऐसा व्हाट इज वेल्डिंग वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले। ओके, एंड इवन जस्ट इन वन सेशन आप व्हाट इज वेल्डिंग वो समझने वाले भी नहीं। बट यस, अब डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसके लिए आपके फ्यूचर क्या है, वो अगर आपको कन्विंसिंग होता है तो देन यस आप उसके लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, सो बिफोर मैं कुछ भी अभी प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूँ उसके लिए डिस्क्लेमर कि जो भी मेरा कंटेंट है that is my own either content or definitely or with our equipment और citation भी उसको दिया है, एंड उसमें इंस्टीट्यूट के मेरे स्टेटमेंट का वो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इंस्टीट्यूट इज नॉट हैविंग एनी से इन दैट। ओके, ये टॉपिक सो वही है जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। ओके, सो दिस इज दैट लैब हमने जो डेवलप किया है। ओके, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। नाउ अवर एक्चुअल सेशन स्टार्ट। ऑलरेडी हमारे पहले भी कुछ एक्सपर्ट्स ने आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया होगा। ओके, सो जस्ट इफ आई नाउ स्टार्ट आस्किंग फ्यू क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। अगेन ये नहीं कि मैं आपको पता है कि नहीं वो जानना है, ऐसा नहीं, जस्ट आई वांट टू इन्वॉल्व। ओके, मेरे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे, मे बी 2+3। ओके, जरूर नहीं आप 7 भी बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इंडिकेट कि आप एटलीस्ट सोच तो रहे हैं, है ना। आई वांट यू टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बहुत सिली रहेंगे, ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू नो द आंसर। ओके, ऑब्जेक्टिव इज टू सी को सामने वाला कुछ तो कह रहा है। ओके, वॉट एवर यू फील आप बताइए ऐसा, ठीक है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या लग रहा है आपको इन जनरल? पूरा वर्ल्ड अभी इस डायरेक्शन में क्यों सोच रहा है? नॉट ओनली थिंकिंग, उसके लिए इनिशिएटिव भी ले रहा है, इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। एनी जस्ट इन्वॉल्वमेंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। Somewhat costly if you compare in long estate. Very good. They are giving some hazardous work of working. So if long term is hazardous to our environment. So reduce this impact. Okay. Turning to green manufacturing. Okay, very good. Green manufacturing. हाँ, आप कुछ कह रहे थे। Faster work. Okay. और कोई? मतलब उसमें स्मार्ट ऐसा क्या आ रहा है ऐसा? स्टूडेंट को भी मैं थोड़ा इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोग अगर थोड़ा सामने आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। प्लीज ब्रिंग योर चेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स इफ दे डोंट माइंड, लेट देम कम एट द फ्रंट आल्सो। ओके, आइए आइए, सब लोग आइए प्लीज। माय प्रेजेंटेशन इज फुल ऑफ वीडियोज ओनली। वीडियोज ही है, छोटे छोटे 1 मिनट क्लिपिंग्स है। ओके, हाँ, स्टूडेंट में से कोई क्या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या लग रहा है आपको? हाँ, यस, वेरी गुड।
वेरी गुड. और ओके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. हाँ, using smart advanced technologies to make to lower यस, यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना. यस, वेरी गुड. ओके, मतलब हर एक डोमेन की अपनी अपनी कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उसे इफेक्टिवली यूज करना है. अभी इमीडिएटली थोड़ा शिफ्ट करते हैं कि अभी वेल्डिंग एटलीस्ट आई होप सबने सुना तो है, नहीं कुछ तो एटलीस्ट देखा तो है ना. मैं ये नहीं कहूँगा कि यूज किया है, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने पर्सनली भी यूज, इवन एज ऑन टुडे ऑल्सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बट एवरी वीक एटलीस्ट मैं 2-4 बार तो वेल्डिंग करके ही देखता हूँ. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओह यस, तो फिर तो बहुत आपके लिए टॉपिक और ये सेशन डायरेक्शन देने वाला भी हो सकता है. मैं सबके लिए नहीं, शायद 2-4 भी लोग उससे सोचे कि नहीं इसके लिए मेरे फ्यूचर बहुत तब हो सकता है. यस, ओके, वेरी गुड. ओके, तो अब वेल्डिंग में कैसे वो स्मार्टनेस आता होगा, मतलब वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या होगा. नॉर्मली अदरवाइज बहुत बार तो बहुत लोग बोलते हैं कि वेल्डिंग क्या है, बस एक इलेक्ट्रोड घुमा तो हो गया वेल्डिंग, है ना, हो गया वेल्डिंग, बट ऐसा नहीं है. सॉरी, जॉइंट शुड बी परफेक्ट. यस, और कोई. सॉरी, अप्लाइंग एंडिट मतलब वेल्डिंग होने के बाद उसका जॉइंट चेक करना है, मतलब उसकी क्वालिटी चेक करना है. यस, वन 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 बाय वन. हाँ हाँ हाँ, डिजिटल, परफेक्ट परफेक्ट. ओके, इक्विपमेंट शुड बी डिजिटल, है ना, इक्विपमेंट शुड बी डिजिटल using robots. Okay, yes, very good. Okay, he has rightly pointed out digital, but otherwise अगर आपने कभी कोई वेल्डिंग इक्विपमेंट देखा होगा, ओके, बहुत ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है ना, उसमें पता भी नहीं चलेगा कि वो आपने वेल्डिंग का करंट कितना सेट किया है और एक्चुअल में क्या वैल्यू है ना, एक्चुअल में क्या वैल्यू, और आपको मटेरियल पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या मिल रही है पता ही नहीं चलेगा. बट नाउ वर्ल्ड हैज चेंज. ओके, ये जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर नाउ involving this. Okay, they are now involving, or almost many industry people they are using it also. Okay, so equipment digital हो रहे हैं. Okay, I will show you one video. Better वो video अभी हम देखेंगे तो और आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. Okay, so just Fronis is one company. तो साउंड आएगा. पर्पसफुली ये वीडियो लिया है बिकॉज आपका टॉपिक भी 3D प्रिंटिंग है ना, थीम प्रोग्राम का. ओके, सो हाउ द ओके प्रोडक्ट इज मेड बाय वेल्डिंग. ओके, वेल्डिंग. अदरवाइज 3D प्रिंटिंग जो है ये मेटल के लिए आइडियली अभी सक्सेसफुल नहीं है. ओके, बहुत लोग बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, बट वो मोस्टली इट इज़ नाउ सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक और उस रेंज के मटेरियल के लिए. फॉर मेटल अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. यस, पीपल आर डूइंग. ओके, सो आप देखिए किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर बनते हैं. ओके, वन अनदर वीडियो. ये जो लैब है, द लैब, ओके, इट इज लोकेटेड एट पुणे. ओके, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड लेटर ऑन टू विजिट दैट लैब ऑफ Fronis, yes, you can contact me. I will make that possibility कि आप लोग वो लैब विजिट कर सके. गुड, वेरी गुड फैसिलिटीज अवेलेबल. ओके, सो I am making the use of their videos because in our lab also, हमारे लैब में भी जो इक्विपमेंट अवेलेबल है वो Fronis के ही है. That is why also we are making use of this. Okay, वो देखिए पहले जो नोजल सेपरेटली बनाते थे, नोजल, और फिर सिर्फ नोजल वहाँ पे फिट किया जाता था. नाउ दैट नोजल इटसेल्फ इज प्रिपेयर्ड देयर ओनली. तो कैसा इन्वॉल्वमेंट अभी हो रहा है. ओके, सो पहले हम ओवरऑल वेल्डिंग एक्टिविटीज का दुनिया कैसे है वो देखते हैं. ओके, क्विकली 2-3 मिनट
उस डायरेक्शन में। तो नॉर्मली जो वेल्डिंग जो है उसका बहुत बार हम जो है ऑब्जेक्टिव नॉर्मली इसको ही देखते हैं, है ना। वेल्डिंग है मतलब हमें जॉइनिंग करना, बट एक्चुअली welding is used for joining purpose hardly 30-40%, ओके, हार्डली 30-40%, ओके, 30-40% ही यूज होता है। तो बाकी और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें वेल्डिंग यूज होता हो? एनी गेस? सोचो। जॉइनिंग तो हो गया है ना, 2 प्लेट है, ज्वाइन करना है, ओके। कटिंग ठीक है, हम वो मान सकते हैं, ठीक है, हम मतलब जो गैस कटिंग वगैरह होता है, ओके, टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बट नॉर्मली वेल्डिंग जो है वो हम कटिंग के लिए थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट आई अप्रिशिएट लोग करते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करते, यस इट इज डन। बट और वो मेजर 2 एरिया कौन से हैं जहां पर हम वेल्डिंग का यूज एग्रेसिव होता है इंडस्ट्री में भी? So in this session I am going to give this information. Don't expect कि हम बहुत मेटलर्जी में या उसके माइक्रो डिटेल में जाएंगे. This will rather help you, क्योंकि पर्टिकुलरली सेशन भी 2 बजे का है, तो I have to see कि आप लोग स्लीपिंग मोड में ना चले जाए, ओके। तो लेट अस होप, आई विल ट्राई टू सी कि ऐसा नहीं हो, ओके। बोलिए स्टूडेंट में से वेल्डिंग हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? वेल्डिंग में भी डिफरेंट पोजीशंस होती है, वेल्डिंग में डिफरेंट पोजीशंस होती है, ओके। जैसे हम मोबाइल में 4G 5G 6G ऐसा जो कंसेप्ट है ना, एक्चुअली वेल्डिंग में भी है, वेल्डिंग में भी है, ओके। कुछ आइडिया है उसके बारे में, वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में? अभी मैं आपको एक कुछ सैंपल भी लाए हैं, ओके। सपोज कुछ हमें वेल्डिंग करना है, लेट अस से ये एक प्लेट है, ओके, और दूसरा प्लेट बाजू में है पेन, थैंक यू। सपोज इलेक्ट्रोड है, ओके, ये आप वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना। नॉर्मली हम यही देखते हैं ना वेल्डिंग। अब तुरंत क्या चेंज हो रहा है बताना मुझे, ओके। अब प्लेट वही है, प्लेट वही है, इलेक्ट्रोड भी वही है, पर्सन भी वही है। नाउ द प्लेट इज ओके लाइक दिस, हम ऐसे वेल्डिंग कर, सपोज दूसरा प्लेट इसके ऊपर है, अब हम वेल्डिंग ऐसे कर, कुछ चेंज हुआ? अनदर, अभी हम वेल्डिंग ऐसे कर रहे हैं, है ना। बाजू में दूसरा प्लेट है, इमेजिन करो, इमेजिन करो, देख बाजू में दूसरा प्लेट है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही हैंड है, ओके। तो एक इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, और ये हम वेल्डिंग कर रहे हैं। चारों में कोई डिफरेंस फील हुआ? चारों में कोई डिफरेंस फील हुआ? फिर से शो करता हूं, ओके। 1 इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन आप देखिए ना, मेटल आपका डायरेक्टली, ओके। सेकंड, थर्ड, आइदर दिस वे और दिस वे, है ना, नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से, एंड देन ओवरहेड, ओवरहेड। बोलिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड, हाँ, थैंक यू। थिकनेस वैसे ही हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है अपने ओके, बट उससे कुछ प्रॉब्लम्स? थिकनेस टाइप। हाँ, इधर से कोई स्टूडेंट, कुछ क्लैरिटी आई? ओवरहेड वेल्डिंग में क्या होगा? ओवरहेड वेल्डिंग में हो सकता है ना एक तो जहाँ पे हमें वेल्डिंग ओवरहेड मतलब वर्कपीस आपके सर के ऊपर है, इसलिए लॉजिकल नाम दिया है ओवरहेड, ओके, वो ऊपर है, ठीक है। एंड देन योर इलेक्ट्रोड इज अपवर्ड, है ना। मोल्टन मेटल आपको ऊपर डिपॉजिट करना है ना, ऊपर डिपॉजिट करना है, बट वो जो ब्यूटी है कॉल्ड एज ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी, वो उसे नीचे खींचेगा, बराबर ना, वो उधर जाने नहीं देगा। बट प्रोडक्ट, आप अब ये मत बोलिए कि अब हम वर्कपीस को थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ठीक है, पॉसिबल है तो करो, पॉसिबल है तो करो, लेकिन नहीं है, कहना फिक्स प्रोडक्ट है, उधर ही करना है, तो देन कितना चैलेंज
है ना। वो ऑपरेटर वो कुछ नहीं सोचेगा। ओके, ये सब आप लोगों को पहले सोचना है। ओके, तो उसके लिए बहुत सारे डिजाइन पैरामीटर्स पिक्चर में आते हैं। करंट कितना रखना है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। ओके, प्री हीटिंग देना है कि नहीं, पोस्ट हीटिंग देना है कि नहीं, वो सब फिर ये आपको बताना है। ओके, एंड देन इट इज सक्सेसफुल ऑल्सो। ओके, तो ये तो हो गया जॉइनिंग। बट मेरा अभी एक इमीडिएट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जो यूज होता है इंडस्ट्री में, जॉइनिंग के अलावा और कौन से पर्पस के लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव, जरा अगर हमने ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखा है ना, एनी गेस, इवन आपका आंसर इधर उधर भी है तो डोंट माइंड फॉर दैट, इन्वॉल्व होना है, प्लीज इन्वॉल्व। हाँ, extreme any metals length or size. ओके, टू एक्सटेंड द लेंथ, ठीक है, मतलब वही वो 3D प्रिंटिंग जैसा, ठीक है, यस, ओके, वो भी कर सकते हैं, वेरी गुड। और फिलिंग ऑफ इरेगुलरिटी, दैट इज इन अदर वर्ड कॉल्ड एज रिपेयर वर्क्स। ओके, एग्रेसिवली वेल्डिंग जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो रिपेयर वर्क्स के लिए ज्यादा होता है, जहां पर कि चैलेंजेस ही चैलेंज है ना। आप इमेजिन करो एक आधा बहुत 6-8-10 करोड़ रुपीस का एक आधा कोई कॉम्प्रेसर है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनके कॉम्प्रेसर भी ऐसे ही रहेंगे, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया। ओके, पता है कि अब वो आप ठीक है वेल्डिंग से रिपेयर कर सकते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसका मटेरियल क्या वही पता नहीं है ना। वो जो कॉम्प्रेसर है जो शायद 20 साल पहले लगा होगा, है ना, 10 साल पहले लगा होगा, तो उसका आपको मटेरियल ही पता नहीं। ओके, अब और वो आप फिक्स हो गया है, उसको आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, तो ऐसे चैलेंज, सो इस सबसे ज्यादा चैलेंज रिपेयर वर्क्स में। ओके, सो अगर आप उसमें खुद का एक्सेलेंस शो करते कि नहीं मैं, उसमें तो एक्चुअल वेल्डिंग तो बहुत कम है। ओके, हार्डली 5% वेल्डिंग इज इन्वॉल्व। आप उसका जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो आपके थॉट प्रोसेस का, कि आप कितना इफेक्टिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ओके, देयर आर मेनी गुड कंसल्टेंट। आप कभी, बिकॉज आई बिलोंग टू सूरत, बड़ौदा जो है मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एकदम हब है। ओके, वहां पर जो है अगर कोई इंडस्ट्री में से छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं ना, ये कंसल्टेंट लोग को वो बुलाते हैं। ओके, वॉट एवर दे वांट, बहुत बार कभी कभी तो पता रहता है कि काम बहुत छोटा सा है, बट वो उनकी एकदम बहुत स्ट्रांग फी रख देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज द चार्जेस फॉर दैट। एक्चुअल वेल्डिंग का खर्चा कुछ भी नहीं है उसमें, एक्चुअल वेल्डिंग का खर्चा कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो ये इंडस्ट्री का कितना नुकसान होने वाला है ना। अगर वो इंडस्ट्री 2 दिन के जगह 10 दिन शटडाउन रहा तो इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा वो उनको पता है, इसलिए वो उनको फिर डिमांड करते हैं कि यस ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देंगे। हार्डली वो काम आधे दिन का ही रहेगा। ओके, एंड देन पीपल लाइक दिस जो कंसल्टेंट्स है, वेल्डिंग कंसल्टेंट, ये भी आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ओके, देयर यू कैन अर्न हेवीली। ओके, बहुत हेवी उसमें आपके लिए इंडस्ट्रीज रेडी है प्रोवाइड करने की। ओके, अगेन आपको वेल्डिंग नहीं करना है, आपके पास तो आपकी टीम रहेगी, यू आर सपोज टू जस्ट गिव द बेसिक्स। एंड तीसरा जो पर्पज है दैट इज क्लैडिंग। क्लैडिंग, ये नाम कुछ सुना, इसके बाद सब वीडियो ही वीडियो है। ओके, इसलिए पहले इसको थोड़ा सा बेसिक समझने की जरूरत है। ओके, क्लैडिंग, ये नाम कुछ सुना है? बोलिए, एनी गेस? हार्ड फेसिंग, ओवरले। आज के डेट में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, जो भी प्रेशर वेसल बन रहा होगा वो उसमें क्लैडिंग कर ही रहे हैं। तो हम 5 मिनट इस पे डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्लैडिंग का, देन यू विल रियलाइज। एनी गेस? मैं आपको उसका एक सैंपल भी दिखाता हूं। कोई गेस आप में से सुना है कभी? जस्ट लाइक अ कोटिंग, यस, ओके, कोटिंग का ही एडवांस वर्जन। ओके, सो 1 मिनट।
प्लेट है कुछ, आप इसको साइड व्यू से देखना है, साइड व्यू। मैं बाद में पास ऑन करूंगा, आपको देखना है तो देख सकते हैं। ओके, दिख रहा है कुछ क्लैरिटी आ रही है? ऊपर से वेल्डिंग ही किया है, ऊपर से आप देखोगे तो वेल्डिंग ही है, इसलिए मैं आपको साइड व्यू से दिखा रहा हूँ। हाँ बोलिए। ओके सर, और कोई स्टूडेंट में से? हाँ चाहिए तो मैं आपको बाद में पास ऑन करता हूँ। ओके, और फिनिशिंग होने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा, मेरे पास फिनिश सैंपल भी है। ओके, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें ऐसा कुछ हुआ है। ओके, ठीक है ना, आप बाद में देखोगे ना, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ 2 mm का अदर मटेरियल डिपॉजिटेड है ना, डिपॉजिटिंग अदर मटेरियल ऑन द सरफेस। मतलब सपोज आपको 20 mm की प्लेट चाहिए, एक आधा प्रेशर वेसल है, ठीक है, वो 20 mm का प्लेट से बनाने का है। ओके, तो पहले तो क्या था कि जो मटेरियल है प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर अब दुनिया ने नए नए मटेरियल ढूंढ के निकाले, सपोज स्टेनलेस स्टील है और कोई P91 F22 जो भी है, वो सब अगर यूज करना है तो पूरा प्लेट अगर आप 20 mm का वो एडवांस मटेरियल का परचेस करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो अब इंडस्ट्री ने इनोवेटिव वेज निकाला है, और वो जो 20 mm है उसमें से 18 mm सस्ता सुंदर टिकाऊ मटेरियल यूज करो, प्लेन कार्बन स्टील या जो भी एकदम रिजनेबल प्राइस में 18 mm का आपका ऑर्डिनरी मटेरियल, ठीक है, और उसके ऊपर 2 mm 2 mm और 3 mm जो भी जो आपको चाहिए, जैसा आपका कैलकुलेशन रहेगा, वो वेल्डिंग से एक लेयर डिपॉजिट करना। ओके, बट कहने के लिए आसान है, चैलेंजेस है। ओके, मेनी चैलेंज है, क्योंकि ये 2 लेयर है, लेयर कभी भी सेपरेट हो सकती है ना, अगर वो दोनों का बॉन्डिंग ठीक से नहीं हुआ तो सेपरेट हो सकती है। तो अभी क्या करते हैं इंडस्ट्री वाले, पूरा वेसल जो है ना एक नॉर्मल मटेरियल का बना देते हैं, नॉर्मल मटेरियल का, और अंदर से 2 mm का एडवांस मटेरियल का क्लैडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, डिपोजिशन ऑफ सम लेयर। बाद में फिनिशिंग होने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कुछ ऐसा 1-2 mm का लेयर डिपॉजिटेड है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्लैडिंग? क्लियर? अब वो देखा जाए तो फिर दोनों मटेरियल अलग है, डिसिमिलर मेटल है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्लेन कार्बन स्टील पे कोई और मेटल डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिसिमिलर मेटल की वेल्डिंग में वैसे भी दिक्कत है, चैलेंजेस है। आपको उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन में मतलब क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैसे यूज करना है, कौन सा करंट यूज करना है, कौन सी मशीन यूज करना है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये बाद में सैंपल कुछ सर्कुलेट करता हूँ, आप लोग देख लेना उसको। ओके, सो लेट अस सी नाउ सम वीडियोस। ओके, तो नॉर्मली अगर हम वेल्डिंग को जो है ना, कॉमन वेल्डिंग को हम ऐसे कुछ देखते हैं कि भाई वेल्डिंग ऐसा होगा, है ना। फिर हम अगर एकेडमिशियन की लैंग्वेज में बोले तो हम वेल्डिंग को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना कि एक प्लेट है, ये जॉइंट है, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ऐसा कुछ एकेडमिशियन। ओके, एकेडमिशियन दुनिया उसको ऐसे समझती है ना, जो कोई एकेडमिशियन नहीं, रिसर्चर नहीं, उसको लिए वेल्डिंग तो ऐसा है, बस खत्म, है ना। एकेडमिशियन जब आपको बताएगा, आप किसी को बताओगे तो आप ऐसा कुछ शो करोगे। ओके, सब है ना। अब रिसर्चर जो है वो क्या करेगा, वेल्डिंग को अलग नजर से देखेगा। क्या देखेगा वो मटेरियल के अंदर में जाएगा, है ना, वो उसके पैरामीटर्स वगैरह उसकी बात करें। और अब देखो अलग अलग लोग उसी वेल्डिंग को अलग अलग एंगल से देखते हैं। ओके, सो ये देखिए, तो और थ्योरेटिकली तो बस हम इसको ऐसे शो करते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा वेल्डिंग हो रहा है लाइक दिस। ओके, बट ये लोग जो वेल्डिंग कर रहे हैं ना, इनके पास एक जो रेडीली अवेलेबल शीट आता है, ओके, एक डॉक्यूमेंट आता है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट बनाने का काम आप लोगों का रहेगा। वो डॉक्यूमेंट
अब एक मैं जस्ट एक बहुत जनरल एग्जांपल देता हूँ, जनरल एग्जांपल, बहुत सिली एग्जांपल। ओके, आजकल कुकिंग का बहुत हर तरफ फैड चलते रहता है ना, कुकिंग शो, ये वो ऐसा वैसा, मास्टर शेफ और ये शेफ वो शेफ, है ना। तो उसमें वो लोग कुछ एक रेसिपी बनाते हैं, है ना। रेसिपी ये कंसेप्ट है ना, कोई भी आइटम, फूड आइटम है, उसकी एक रेसिपी बनती है। वो रेसिपी क्यों बनाते हैं, उसका क्या यूज है रेसिपी का। एग्जाम्पल बहुत जनरल है, बाद में हम उसको वेल्डिंग से कनेक्ट करेंगे। ओके, वो जो रेसिपी, कोई एक आधा मास्टर शेफ कहता है कि मैं ऐसा वैसा, ये मेरी रेसिपी है, ये पनीर की सब्जी है, आप ये रेसिपी फॉलो करो, आपको सेम ऐसा क्वालिटी मिलेगा। क्या होता है वो रेसिपी का, मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, सेम प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब अगर क्वांटिटी ठीक हुई तो फिर रिजल्ट ओके, और कोई, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बाकी लोग प्लीज इन्वॉल्व हुई। जनरल क्वेश्चन है, इसलिए अभी आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हमारे बुक में हमने पढ़ा नहीं, ये जनरल है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत है। क्वालिटी और टेस्ट क्वालिटी है ना, टेस्ट, वो पर्सन जो है आपको गारंटी दे रहा है, आप इसको फॉलो करो, 10 ग्राम यही डालो, इतने समय के बाद ही डालो, शुरू में मत डालो, है ना, टेम्परेचर इतना ही रखो फ्लेम का, ठीक है, तो आपको पक्का परफेक्ट होगा और वही टेस्ट मिलेगा जो इनको मिल रहा है, जो इनको मिल रहा है, जो इनको मिल रहा है, जो रशिया में मिलेगा, जो अमेरिका में मिलेगा। कोई भी बनाओ, आप ये फॉलो करो, वही टेस्ट मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं, रेसिपी का वो इंपॉर्टेंस है, बट प्रोवाइडर आपको उसको फॉलो करना, और बनाने वाले को भी बहुत लॉजिकली बना, वो कैजुअली नहीं बनाना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर लोग तो फिर उसको कोई रेफर नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलरली वेल्डिंग में भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनता है रेसिपी जिसे हम रेसिपी ही कहते हैं, जिसे हम रेसिपी ही कहते हैं। इंडस्ट्री में एक उसको रेसिपी बता, ये प्रोडक्ट का रेसिपी दे दो, मतलब वो क्या मांग रहे हैं, वो मुझे पैरामीटर बता दो। वो वेल्डर को बोलेगा भाई अभी मेरे को कोई दिमाग नहीं, जैसा अभी ये वो जो पनीर की सब्जी बनाने वाला है ना, उसको ज्यादा सोचना नहीं, उसको पता है ये नमक डालना है, इतना ही डालना है, ओके, ये कोई मसाला डालने से क्या मिलता है उसको भी मालूम नहीं है, बट उसको पता है ये मुझे बस उन्होंने लिखा है 5 ग्राम डाल दो, डालना है, ओके, ये टेस्ट मिलेगा। वैसा ही वो ऑपरेटर को पता है कि इसमें जो जो लिखा है मैं अगर वो फॉलो करूंगा तो मेरा बनाया हुआ जॉइंट में ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। टेस्ट की जगह यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का मेजरमेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी से है, बराबर ना। ओके, तो वो डॉक्यूमेंट बनाने का काम आप लोगों का है इंडस्ट्री में। आप वो सोचो, जो मास्टर शेफ है वो रेसिपी ऐसे ही उठ के बनाता होगा क्या, थोड़ा सा उसको भी उसका एक्सपीरियंस दाव पे लगाना होता है, या खुद ट्राई करके देखना होता है। तो वैसे अगर आपको भी वो ऐसा करना है तो आपको ट्रायल लेना, आपके पास वेल्डर रहेगा, उसको बोलो भैया आप आज 100 एम्पियर पे थोड़ा करके देखो, 120 पे करके देखो, 150 एम्पियर पे करके देखो, क्या हो रहा है मुझे देखने दो। फिर आपको लगता है नहीं 150 पे रहेगा तो ऐसा है, तो ओके लेट मी राइट 150 एम्पियर। ओके, तो ये वो काम है आप लोगों को जो रिसर्च में भी, आइदर रिसर्च में या इंडस्ट्री में। ओके, तो दैट इज वाई सबसे पहला तो मेरा आपको मतलब ये अभी तक का जो 20-25 मिनट मैंने इन्वेस्ट किया है वो ये इसके लिए कि आप वेल्डिंग डोमेन में है तो वेल्डर बनने के लिए नहीं है, ठीक है। और यही काम सारे इंडस्ट्री के जो टॉप प्रोफेशनल है, हम जहां पे भी जाते हैं ना, हम यही पहले तो टाइम मैं इन्वेस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम टू सी कि एटलीस्ट आप में से 10 लोगों को उसका एक्सेप्टेंस हो, फिर आप और किसी 100 लोगों को बताए, उसमें से कोई 10 लोग एक्सेप्ट करे, वो ऐसा चेन बनेगा, नेटवर्क है ना। सो दैट वे आई एश्योर यू कि इस डोमेन में बहुत फ्यूचर अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी के लिए, एज ए कंसल्टेंट की तरह, एज ए रिसर्चर की तरह, एज ए इंडस्ट्री में आपको एज ए जॉब करना है उसकी तरह ह्यूज पोटेंशियल है। ओके, सो प्लीज ट्राई टू सी कि आप कैसे इस डोमेन में प्रैक्टिकली सोचते हैं, क्योंकि कोई भी मेटल बेस्ड इंडस्ट्री हो वहां पे ये तो आना ही है, ओके, वेल्डिंग आना ही है। ओके, सो दीज आर द एंड यूजर्स। ओके, सो वेल्डिंग डोमेन में स्कोप का, अभी हम वेल्डिंग एडवांसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, कहाँ पर वेल्डिंग डोमेन में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट का स्कोप है,
हमारा टॉपिक जो है कि वेल्डिंग में टेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरा वेल्डिंग डोमेन को अगर हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर स्कोप है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर, जैसे आपको कोई बता रहा था कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब फिर उसमें डिजिटल इक्विपमेंट या ये वो ऐसा वैसा, तो कहाँ कहाँ पर हमें स्कोप है। एनीवे 2 मिनट बाद तो मैं बताऊं भाई, आप लोग कोई एनी गेस, कोई मे बी एनी गेस, आप बताओ। वेल्डिंग के पूरा डोमेन जो है इसमें टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करना है तो कहाँ पे स्कोप रहेगा? एडवांस टॉर्चेस, जो टॉर्च होती है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। और सॉरी सेफ्टी, यस, सेफ्टी के लिए इंडस्ट्रीज एग्रेसिवली यूज कर रही है, क्योंकि ऑपरेटर हर 5 मिनट बाद ब्रेक लेगा तो बात नहीं चलेगी। अभी इतना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुआ है कि 5-5 घंटा ऑपरेटर, उसको एसी कैबिन दिया है वहां पर, जहाँ पे बैठ के उसको, वो भी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है तो उसको तो वो करना नहीं है, तो वो जो जहाँ बैठता है वहाँ पे एसी कैबिन प्रोवाइड किया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी। ओके, और सॉरी यूजिंग रोबोट्स, यस, आपने भी कहा था रोबोट्स का आप जितना यूज कर सकते हैं, तो रोबोट्स आएगा तो प्रोग्रामिंग आएगा, है ना, पूरा प्रोग्रामिंग आएगा। प्रोग्रामिंग के लिए आपको तो शॉप क्लियर पे जाना नहीं है। ओके, इट इज इन ट्रू सेंस, ओके, 90% ऑफ द वर्क इज व्हाइट कॉलर जॉब इन वेल्डिंग डोमेन आल्सो। ओके, और यस, ओके, रिमोट कंट्रोलिंग में अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, ओके, जहां पर आप देखोगे कि पूरा उसका डेटा आपके मोबाइल ऐप में आते हैं। अभी इसके लिए ऐप भी आ गए हैं। ओके, इवन देयर आर सम स्टूडेंट वर्जन एप्स अवेलेबल, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यू सी हियर कहाँ कहाँ पे, एक तो प्रोसेस में स्कोप है, प्रोसेस वेल्डिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस है ना, आप वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन कंज्यूमेबल, सबसे बड़ा दूसरा मेजर सेक्टर अगर कोई है वेल्डिंग में तो कंज्यूमेबल सेक्टर। ओके, हम सूरत में देखते हैं बहुत बार ऐसे बहुत बहुत बड़े के इंडस्ट्रीज के लोग उधर के इंडस्ट्रीज को मिलने आते हैं कि हमारा ये कंज्यूमेबल मेटल है, उसमें ये बेनिफिट है वगैरह वगैरह। ओके, तो क्योंकि कोई भी मटेरियल आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, जैसे मैंने कहा ओवरहेड वेल्डिंग है, ओवरहेड वेल्डिंग है, वो तो अगर आपने राइट कंज्यूमेबल यूज नहीं किया ना तो गॉन केस। ओके, तो इसलिए कंज्यूमेबल में सबसे बड़ा स्कोप है। इवन ये जो क्लैडिंग का जो मैं एग्जांपल बता रहा था, क्लैडिंग, ठीक है, अब पता है कि इंडस्ट्री ने कहा है कि इधर के साइड मुझे ए मटेरियल चाहिए, ऊपर से बी मटेरियल चाहिए। मैं ए और बी के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं ना, इधर ए इधर बी चाहिए। ओके, लेकिन आपने बहुत ट्राई किया, आपको पता है वो ए और बी का दोनों के साथ मैच मेकिंग ही नहीं हो रहा है, कितना भी ज्वाइन करो वो सेपरेट हो जाता है ना। लेकिन कंपनी बोलता है नहीं, मुझे इधर तो ए ही चाहिए, इधर बी ही चाहिए। तो फिर कैसे? तो उसका कंसेप्ट है फिर ए एंड बी के बीच में कोई तीसरा मटेरियल ऐड कर दो, काम बढ़ेगा, बट ए एंड बी के बीच में तीसरा मटेरियल ऐड कर दो जिसका ए के साथ भी दोस्ताना है, बी के साथ भी दोस्ताना है ना, तो दोनों को पकड़ के रखेगा। अब देखो ये पूरा कंज्यूमेबल का गेम है। ओके, तो इसमें कंज्यूमेबल वाली जो कंपनी एडोर वेल्डिंग, ओके, ओवरलिकॉन, इसाब, ओके, वॉलर, ये सारे जो दिग्गज कंपनियां जो है ना, इवन ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी फेलोशिप अवेलेबल है। ओके, ये जो कंज्यूमेबल इवन इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी, इनके पास स्टूडेंट के लिए भी बहुत ऐसे ये, आप इसको थोड़ा सा मैं पास ऑन करता हूँ, पैरेलली आप लोग देखते रहिए इसको, तो 3 जन आप बाद में पास ऑन करते जाना पैरेलल। ठीक है, ओके, तो ये कंज्यूमेबल में स्कोप है। देन सपोर्ट टूल्स, वेल्डिंग में भी सपोर्ट टूल्स कहां पे आ गए बताइए? सपोर्ट टूल्स मतलब क्या? सॉरी, tools used for holding the job. यस, क्लैंप्स है ना, क्लैंपिंग्स है ना, क्लैंप जो आते हैं, आपका जो वर्क पीस है ना उसे आपको क्लैंपिंग करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, जो जब वेल्डिंग करते हैं ना तो मेटल एक्सपांड होता है और वो बेंड होने के चांस है। इवन वो जो प्लेट आप देखोगे ना, अभी आप देखना थोड़ा सा वो बेंड हुआ है, एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्लैंपिंग ठीक से नहीं है ना
तो वो वैसा होगा और वो फिर रिजेक्शन होगा। तो बाद में जब आपके पास आएगा एक बड़े साइज का जो प्लेट है वो आप थोड़ा देख लेना है। ओके, तो सपोर्ट टूल्स, बहुत सारे सपोर्ट टूल्स है जहाँ पर आपको एग्रेसिवली जो टॉर्च वगैरह है, मैं उसके तो वीडियो भी दिखाऊंगा। ओके, सेफ्टी डिवाइसेस जैसा आपने कहा, ओके वहाँ पर काफ़ी स्कोप है। एआई का ज़माना है तो उसका इन्वॉल्वमेंट आप एग्रेसिवली कर सकते हैं। ओके, और प्रोफेशनल बॉडीज को लेकर साथ चलना है। ओके, प्रोफेशनल बॉडीज, तो आई एम गोइंग टू शो यू दोज प्रोफेशनल बॉडीज ऑल्सो जिसका आप यूज कर सकते हैं। सो अब इसमें ऑटोमेशन कहाँ पर आया है वो देखते हैं। ठीक है, सो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है एक बार देख लेते हैं। आप ये देखिए, जस्ट में क्विकली, जस्ट रिसेंटली वन big project is completed. Okay, Badmer refinery, somewhere between Gujarat and Rajasthan. Okay, अभी आप बाद में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ओके, पाइपलाइंस के थ्रू फिर वो ट्रांसफर करते हैं। ओके, आपको पता है रिफाइनरीज में उनको पहले तो एक्सट्रैक्शन करना है, जो भी जमीन के अंदर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है दैट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, या तो फिर उसको वहीं पे रिफाइन करो या रिफाइनिंग के लिए कहीं और शिफ्ट कर दो। तो इन केस में वो थ्रू पाइपलाइन वो कहीं दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर कर रहे हैं। बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो रॉ मटेरियल, जो रॉ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जमीन के अंदर से निकाल रहा है ना, उसके अंदर थोड़ा सा वैक्स कंटेंट भी है, थोड़ा सा वैक्स कंटेंट है। ओके, अब वैक्स कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है, उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता है वो रूम टेम्परेचर पे वैक्स फिर आपका सॉलिड हो जाएगा ना, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो जमीन के अंदर तो ठीक है, वो जैसा है वैसा है अपने को, लेकिन जब आपने एक्सट्रैक्ट किया है और उसको आप मतलब अभी ट्रांसफर करना है, उसके साथ सब कुछ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, सब कुछ मिक्स है। रिफाइनिंग करने के पहले जो रॉ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें अनवांटेड मटेरियल ही ज्यादा है, आपके काम का बहुत कम रहेगा। ओके, तो फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत, तो क्या किया उन्होंने, पूरा जो पाइपलाइन लेट डाउन है ना, उसमें जगह जगह पर हीटिंग सोर्सेस लगाए, जगह जगह पर हीटिंग सोर्सेस लगाए पाइप को, ताकि यू हैव टू इंश्योर कि अंदर के जो रॉ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो फ्लो हो रहा है वो ठीक है हाई टेम्परेचर पे रहेगा, बट मेन ऑब्जेक्टिव है वैक्स सॉलिडिफाई ना, मेन ऑब्जेक्टिव ये है ऐसा, है ना। तो इसके बेसिस पे होना तो, लेकिन अब वो हीटिंग बीच बीच में आ रहा है तो आपका मेटल जॉइंट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो हाउ इनोवेटिवली दे डिजाइन, बहुत बहुत अच्छी तरह से दिखाया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एचपीसीएल का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ऐसे जो यहाँ पर ह्यूज चैलेंजेस इन्वॉल्व हुए, इवन इवन अभी एक कंपनी है जिसका नाम शायद आपने कभी सुना है कि नहीं, आई डोंट नो, आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया, ये वो कंपनी जो है जो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बनाते हैं जो रूम टेम्परेचर के नीचे यूज होते हैं, माइनस टेम्परेचर पर। आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोरोना के टाइम पे जो चाहिए थे ना, ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो इवन नॉट ओनली टू इंडिया, इंडिया के बाहर भी मेजर कंट्रीज को जो सप्लाई करने का काम किया है वो आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा। ओके, ये कंपनी है, उन्होंने क्योंकि जो प्रोडक्ट, जो मेटल है, वेल्डिंग अगर आप नॉर्मल वेल्डिंग करोगे ना और उसको आप माइनस टेम्परेचर पे यूज करोगे तो वो बिस्किट की तरह टूट जाएगा, वो जॉइंट। ओके, तो उसको आपको ठीक से डिजाइन करना है। ओके, तो अलग अलग एप्लीकेशन, ओके, तो चैलेंजेस आप ये देखिए, देखो मैं ये जो कह रहा था ना, इधर से देखिए ग्रेड 91 मटेरियल है, इधर से स्टेनलेस स्टील है, तो बीच में निकेल बेस का एक मटेरियल आपको रिकमेंड करना है। मतलब बाद में वो वेल्डर को काम है कि वो उसको कैसे कंप्लीट करना है, बट वो उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यू सी, जैसे कि ये फ्रोनिस, ये इक्विपमेंट हमारे पास भी है, इसीलिए हम उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमेशन की जो बात करें तो डिजिटल इक्विपमेंट, अभी देखिए वेल्डिंग के इक्विपमेंट फुल्ली डिजिटल। ये जो सपोर्ट टूल्स भी आप देखोगे, जो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो टूल्स चाहिए,
देखिए पेन ड्राइव के थ्रू आप सारा डेटा एक मशीन से दूसरे मशीन में सेट कर सकते हैं। डिफरेंट पाइप्स, जो आर्क है, सो फुल ऑफ ऑटोमेशन। पाइप के अंदर से वेल्डिंग करना है तो दे आर मेकिंग सम अरेंजमेंट। ये है वो क्लैडिंग जो करें ना, पाइप के अंदर भी क्लैडिंग कर रहे हैं। लेयर बाय लेयर, देख मैंने जो सर्कुलेट किया आप करते रहिए। फिनिश होने के बाद वो सैंपल ऐसे दिखते हैं, जो एक बड़ा प्लेट दिख रहा है उसका फिनिशिंग नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा उसको मशीनिंग कर देंगे तो बाद में पता भी नहीं चलेगा कि उसमें 2 mm का कोई अच्छा क्वालिटी का मटेरियल डिपॉजिट किया हुआ है। तो यू सी हियर। अब मैं आपको ये एक इक्विपमेंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो टॉर्च है ना, ये जो ऐप है, मैं जो कह रहा था कि वेल्ड कनेक्ट ऐप, बाद में आपको डाउनलोड करना है तो आप भी कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। ओके, वाई आई एम शोइंग देयर वीडियो, क्योंकि परमिशन लिया है एंड उनके इक्विपमेंट भी हमारे लैब में है, दैट इज वाई। ओके, सो आप देखिए मटेरियल को स्कैन किया, सो गैस कौन सा यूज होगा उसका क्या स्कैन हो जाएगा, मतलब सारे डिटेल्स ट्रेसेबल रहेंगे, सारे डिटेल्स, मतलब बाद में कहाँ पे मिस्टेक हुआ है वो आपको ट्रैक हो जाएगा। ओके, सो देखिए वो पर्सन अभी वेल्डिंग करेगा ना, उसके पैरामीटर उसमें कैच हो जाएंगे, मशीन में कैच हो जाएंगे। अभी वो दूसरे को पास ऑन करेगा, वही डेटा जो है दूसरे को पास ऑन करेगा। व्हाइट, हमेशा वेल्डिंग जो है सिल्वर कलर का आना चाहिए। ओके, ठीक है। देखिए अभी उन्होंने दूसरे मशीन पर सेट करेंगे, द सेम डेटा। अभी मशीन बदल गई है, वो जो मशीन दिख रहा है ये सेम मशीन हमारे पास है, सेम मशीन वी आर हैविंग, फुल्ली डिजिटल, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल देयर। ओके, एंड इवन वी आर अलाउइंग मेनी स्टूडेंट टू यूज दैट फैसिलिटी। देखिए उसको भी वही पैरामीटर डायरेक्टली उसने यूज किया, ही इज गोइंग टू गेट द सेम क्वालिटी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे हुआ है, साउंड है एक्चुअली इसमें, लेकिन वो आ नहीं रहा है। आजकल तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम सर्जरी करते हैं, तो यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी इज देयर, तो वही कंसेप्ट इधर भी यूज किया है। यू सी हियर, आई एम ट्राइंग टू शो द एडवांस टेक्नोलॉजी, बट एक सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एडवांस वर्डिंग है उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज देन हो सकता है आपको वो हेवी हो जाए। ओके, सो दैट वे इट इज कंप्लीटेड। एक दूसरा वेल्डिंग सिमुलेटर जो है, ओके, ये सिमुलेटर जो है वो भी हमारे लैब में अभी आने वाला है, वेल्डिंग सिमुलेटर। आप ये देखिए, आजकल हर जगह पे सिमुलेशन ये कंसेप्ट अवेलेबल है ना। सो एक्चुअल वेल्डिंग नहीं हो रही वहां पे, ओके, बट एंटायर सेटअप इज सिमिलर टू वेल्डिंग। गन भी है, वर्कपीस भी है, ओके, सारी देखिए उसने पोजीशन चेंज कर दिया, व्हाट ही इज डूइंग, वो पोजीशन चेंज कर रहा है, जॉइंट चेंज कर दिया। तो हम लोग तो ऐसे इक्विपमेंट पे ही अभी ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट को, एंड इंडस्ट्री इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग, क्योंकि इसमें मेटल की जरूरत नहीं है, एक्चुअल इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है, तो कंज्यूमेबल बच जाता है प्रैक्टिस के लिए। सो ये जो सिमुलेटर है ना, इवन फ्रॉम 2018 वी आर हैविंग इन आवर लैब, 2018 से है,
एंड देन बहुत सारे जगह पे इंडस्ट्री वालों ने भी उसे अभी उनके कंपनी में यूज करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है, एक्चुअल मेटल कंजम्पशन नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट आपको खाली प्रैक्टिस करना है, तो आप सोचो कितना मेटल का वेस्टेज होगा खाली प्रैक्टिस के लिए। यस, प्रैक्टिस आप छोड़ तो नहीं सकते हैं, तो ये वेल्डिंग सिमुलेटर कंसेप्ट अभी आए हैं, ओके, जिसका यूज करके आप वर्चुअल, जैसे अभी पायलट्स वगैरह होते हैं, उसका भी ट्रेनिंग पूरा वर्चुअली चलता है, ओके। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, है ना, स्मार्ट टेक्नोलॉजी इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस डोमेन, ओके। अभी देखिए वो एक्चुअल वेल्डिंग नहीं होगी, बट उसे ऐसा लगेगा कि वो वेल्डिंग ही कर रहा है। वो जो हेलमेट पहना है ना उसने, उसमें वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, ओके। थ्रू दैट जब वो पहनेगा ना, उसे लगेगा कि वो एक्चुअल वेल्डिंग कर रहा है। सो इट इज वेरी वर्थ टू यूज, ओके। देखिए वो इलेक्ट्रोड के जैसा ही गन है, ठीक है। देखिए वो कुछ वेल्डिंग नहीं हो रहा है, बट उसे यही लगेगा कि वो वेल्डिंग कर रहा है। इवन मेनी इंस्टीट्यूट ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग दिस इक्विपमेंट, उनके लैब में, डिपार्टमेंट में दे स्टार्टेड यूजिंग दिस, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट का, बाद में कोई कंज्यूमेबल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई डेडिकेटेड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। वो देखिए एक्चुअल वेल्डिंग नहीं हो रही है, बट उसमें सारा डेटा आपका आ जाएगा, ओके। मशीन में सब डेटा आ जाएगा, और आपका मूवमेंट कैसा था वो आप ट्रैक कर सकते हैं, कुछ डिफेक्ट आया है क्या, ओके। अभी शॉर्ट इलेक्ट्रोड है, शॉर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब आपका हैंड जो है वेरी नियर टू वर्कपीस। लॉन्ग इलेक्ट्रोड मतलब है आपका हाथ जो है वर्कपीस के बहुत दूर है। वेल्डिंग जो है ना, एक्चुअली बहुत बार उसे कास्टिंग के तौर पर ही कोरिलेट किया जाता है। कास्टिंग मतलब क्या होता है? कास्टिंग वर्ड सुना होगा ना पर्टिकुलरली आप लोग। मोल्टन मेटल हम पोर करते हैं, वो जो कैविटी है उसमें मोल्टन मेटल पोर करते हैं, बाद में वो सॉलिडिफाई होता है। वेल्डिंग में भी हम वही कर रहे हैं, मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं और वो सॉलिडिफाई हो रहा है, प्रैक्टिस के समय वो आपको गाइड भी करेगा कि आप गलत जा रहे हैं। वो सिंपल मॉडल, मीडियम मॉडल, एडवांस मॉडल, वो सब कंसेप्ट रहेगा। वो जो ब्लू कलर आता है ना, आइडियली इट शुड नॉट कम, ओके। ब्लू कलर इज इंडिकेटिंग कुछ तो पैरामीटर आपने गलत सिलेक्ट किया। सो आवर टॉपिक इज एडवांसमेंट इन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, है ना। वेल्डिंग डोमेन में क्या क्या एडवांसमेंट हुए, ये सेशन जो है आपको वो सारा बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक ही सेशन में ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पता चलेगा, बट यस आपको एक डायरेक्शन मिलेगा दैट आपने बनाया हुआ जॉइंट जो है फिर आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, या कहाँ पे गलत हुआ है, कौन सी जगह पर आपका हाथ थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, साइड हो गया था, वो सब यहाँ पे ट्रैक होता है। और इसके बाद वो जो सिमुलेटर है वही एक सर्टिफिकेट भी इश्यू करता है। वंस यू अचीव दैट पर्टिकुलर मार्क्स, उसमें मार्क्स सिस्टम रहता है, वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा कि यस आप अभी एक्चुअल वेल्डिंग के 95% नियर हो, एक्चुअल वेल्डिंग के, ओके। इवन सम इक्विपमेंट दे क्लेम कि इसमें अगर आप पास होते हो तो आप एक्चुअल वेल्डिंग के 99% नियर है।
क्योंकि इसमें बस एक ही इश्यू है कि ये आपको कभी वो हीट का फीलिंग नहीं देगा, बस दैट्स इट। अदरवाइज इट विल गिव ऑल दोज फीलिंग ऑफ एक्चुअल वेल्डिंग। बस जो एक्चुअल वेल्डिंग में जो थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आएगा। ओके, तो वो जो डेटा है आप बाद में सब जगह पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इवन आप आपके ऑफिस में बैठ के सभी लोगों का वहाँ पे इंडिविजुअल लॉगिन रहेगा। सपोज आप यूज कर रहे हैं, आपका लॉगिन रहेगा तो आपका सारा डेटा उसमें स्टोर रहेगा। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सबका इंडिविजुअल लॉगिन आईडी रहेगा, ताकि फिर आपका सारा 1-2 महीने का डेटा उसमें स्टोर रहेगा। आपको हर बार उसे ही ओपन करना है, उसमें आगे करते जाना है। ओके, तो वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, जिसने भी ये बनाया है, सबसे बड़ी 2 मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया है। वन इज फ्रोनिस एंड वन मोर इज लिंकन इलेक्ट्रिक। ओके, लिंकन इलेक्ट्रिक का रिसर्च सेंटर चेन्नई में है, फ्रोनिस इंडिया का रिसर्च सेंटर पुणे में है। ओके, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत प्रोविजन अवेलेबल है, इवन फेलोशिप स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। अगर आप लोग उस डोमेन में खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो यू कैन राइट देम, और अगर कोई रिकमेंड करता है तो जनरली वो उसको कंसिडर कर ही लेते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एक आइडिया आ रही है। ओके, सो इसको मैं 1-2 मिनट बाद दिखाता हूँ। अब तक कोई डाउट, जनरल डाउट, जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वेल्डिंग में, वो सैंपल भी आपने सबने लगभग देख लिया होगा। देखा है सबने, बाकी लोगों ने देख लिया? उसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी इवन कोई सिली डाउट भी है ना तो हेजिटेट मत करो प्लीज, अदरवाइज आप हेजिटेट करोगे ना तो आपका ही नुकसान है। कोई जनरल डाउट रिगार्डिंग क्लैडिंग? क्योंकि वेल्डिंग अभी धीरे धीरे जॉइंट की जगह क्लैडिंग में ही ज्यादा यूज होगा। Any guess? Any doubt? मटेरियल आर यूज फॉर क्लैडिंग। ये जो ऊपर का मटेरियल है उसका नहीं, अभी वो फिर आपका जो कस्टमर है वो ही बताएगा कि मुझे तो इधर से यही मटेरियल चाहिए। एज पर हाँ, उनके हिसाब से है ना। मतलब मान लो एक आधा हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर के अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो लिक्विड आपके मेटल को अंदर से करोड कर सकता है, करोजन हो सकता है। तो हो सकता है अंदर से आपको करोजन रेजिस्टेंस चाहिए, बाहर से कोई और एनवायरनमेंट होगा, तो दोनों का मटेरियल अलग रहेगा। आपको तो खाली वो रेसिपी बनानी है। इट इज वेरी हार्ड टू वेल्ड टू डिसिमिलर मेटल। मैं वही बोल रहा हूँ, वेरी हार्ड। डिसिमिलर वेल्डिंग में अगर हर एक स्टूडेंट भी एक टॉपिक लेगा ना डिसिमिलर वेल्डिंग का, तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों का सेम वर्क है ना। क्योंकि हो सकता है आपका स्टेनलेस स्टील होगा और प्लेन कार्बन स्टील होगा, आपका एल्यूमिनियम कॉपर होगा, आपका कोई होगा, इवन एल्यूमिनियम कॉपर में आपका 2 mm वाला होगा, इनका 5 mm वाला होगा, थिकनेस भी बढ़ जाएगा तो सब चेंज हो जाएगा। तो बहुत इसमें स्कोप है। ओके, बस आपको एक बार प्रूव करना है कि यस मैंने ऐसा कुछ रेसिपी बनाने का कोशिश किया है जिससे वो बन जाए, बट उसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन प्लीज बिलीव मी कि ये जो LNT जो है, LNT या उसके इक्विवेलेंट जो भी कंपनियां है, उनके इसमें जो नए एम्प्लॉय जो ज्वाइन होते हैं ना, नए एम्प्लॉय वेल्डिंग इंजीनियर के लिए, जिनको मैंने कहा कि कभी शॉप फ्लोर में जाना नहीं है, ओके, हो सकता है वो जो नए एम्प्लॉय है IIT से भी पास आउट होंगे, NIT से भी पास आउट होंगे, या आप जैसे भी होंगे, कोई भी हो, जैसे वो सिलेक्ट होता है पहले 3 महीना उसे शॉप फ्लोर पे ही स्पेंड करना और एक्चुअल वेल्डिंग करना है। वेल्डर का स्किल डेवलप करने के लिए नहीं, कि वेल्डर फिर आप जब एक्चुअल करोगे तो वेल्डर बाद में आपको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं, है ना, आपको कैसा कुछ भी ट्रबल में डाल सकते हैं, वो सारे हिडन जो भी इश्यूज है वो आप वहां पे शॉप फ्लोर पे रह के खुद कर करके देखो, ताकि अब 3 महीने के बाद जब आप फुल टाइम ऑफिस में बैठोगे तो डिजाइन करते समय उन सारी चीजों का ध्यान रखोगे। ओके, तो इवन IITN भी अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना तो भी उसे 2-3 महीना वो स्पेंड कराते, उसका एक जो सैंपल खुद बनेगा वो सैंपल पास होना चाहिए। ओके, तो ये वो इश्यूज है। इवन आपने मैंने एक जो छोटा स्पेसिमेन दिया था, ओके, इसमें क्लैडिंग का ऑपरेशन कब हुआ है? क्लैडिंग ही है, उसमें कई छोटा पीस निकाला हुआ है। ये जो छोटा पीस है वो क्योंकि बाकी का जो प्लेट है ना उसमें से हमने इंटरफेस, मतलब आपने देखा होगा एक लाइन दिख रही होगी,
उसके नीचे एक मटेरियल है, उसके ऊपर, तो वो इंटरफेस पे हम उसकी मेटलर्जी चेक करते हैं, मेटलर्जी माइक्रोस्कोप में, ठीक है, कि वो ठीक से कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो ये उसी का ही पार्ट है। ओके, और वो भी उसी का ही पार्ट है जो दूसरा प्लेट है ना। तो आप देखिए सरफेस फिनिश होने के बाद कुछ इतना पता नहीं चलेगा कि उस पर क्लैडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो दैट्स व्हाई मेनी पीपल अभी उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि बस मटेरियल चेंज कर दो, उसका अप्रोच चेंज कर दो, प्रोजेक्ट बन जाएगा ऐसे। लाइफ कितनी रहेगी सर? किसका? इससे जो मेटल करेंगे उसकी लाइफ नहीं, वही ना, तो फिर आप जो रेसिपी बनाओगे ना उसकी ज्वाइंट करने की, वेल्डिंग की, वो रेसिपी अगर आपने अच्छी बना दिया ना तो उसमें तो फेल्योर आना ही नहीं है, फेल्योर आना है, क्योंकि आप टेस्ट भी करके दोगे कि ठीक है अभी इसका मेटलर्जी भी अच्छा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमने टेस्ट कर दिया, तो जो अदरवाइज हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ तो रहती है 10 साल 15, आप कोई शिप है, शिप का भी कोई लाइफ रहेगा या कोई और कोई कंपोनेंट है, तो वो लाइफ तक तो वो पक्का कुछ नहीं करेगा ऐसा। It is so latest topic for the research or एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी वेल्डिंग में ये सब चल रहा है। इवन अभी तो ये सब ठीक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो अभी मैं बताया ही नहीं। ओके, प्रॉब्लम बोले तो चैलेंज, बट फिर भी एक्चुअल वर्क बहुत कम है। जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी सोच की। आप इमेजिन करो, अब ये जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया, बड़े बड़े प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, प्रेशर वेसल, पाइपलाइन, ये वो ऐसा वैसा, अब आप इमेजिन करो कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो इस बटन साइज का है, बटन साइज का है, और उसकी थिकनेस हार्डली 1 mm है, और उसमें कुछ आपको वेल्डिंग करना है। अब देखो प्लेट कितना ठीक, एकदम छोटा है, प्रोडक्ट भी छोटा है ना, थोड़ा भी हीट ये ज्यादा हो गया तो पूरा प्रोडक्ट ही वो आपका मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो वहां पर भी आपको आपका दिमाग का पैसा है। ओके, कि आप उसे कितना इफेक्टिवली, वही सपोर्ट टूल्स वहां पे कैसे प्रोवाइड कर पाते हो कि ये छोटे प्रोडक्ट को ग्रिप करने के लिए। हाँ, ये माउंटिंग वाले भी सैंपल लाए मैंने, हाँ वो मैंने दिखाया ही नहीं है ना, ये माउंट, दीज आर माउंट है नहीं, बट वो एक्चुअल वेल्डिंग के समय नहीं कर सकते, एक्चुअल वेल्डिंग के समय करना मुश्किल होगा, आप देखना है तो देख सकते हैं। ओके, तो बाद में मैं आप लोग आके बाद में देखना है, मैं आपको टाइम दूंगा ऐसे, ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है ना, ये जो गन यूज होती है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, एक आपका इलेक्ट्रोड वाला, दूसरा मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में वो इलेक्ट्रोड जो हम मैन्युअली यूज कर रहे हैं वो नहीं रहता, यहाँ पे वायर फॉर्म में रहेगा। तो यू सी दिस। ओके, ये गन कितना इनोवेटिव वे से डिजाइन किया है। वो गन पर ही आपको करंट कम ज्यादा करने की प्रोविजन दिया है, करंट की वैल्यू कम करो घटाओ, उसके ऊपर ही डिस्प्ले भी किया है कि अभी एग्जैक्टली करंट की वैल्यू क्या है, ताकि जो ऑपरेटर है ना उसको बार बार मशीन पे देखने की जरूरत नहीं है। इजी टू ऑपरेट ट्रिगर दिया है। पहले के जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट थे ना, ये देखिए यहाँ पे आप वैल्यू, उसको भी चेंज किया है बाद में उन्होंने। तो द एग्जैक्टली सेम गन इज अवेलेबल विथ अस ऑल्सो। वो हैंड को गर्मी ना लगे इसलिए वहां पे शील्ड प्रोवाइड किया है, वो वहां पे बॉल जॉइंट दिया है ताकि हाथ पर ज्यादा प्रेशर ना आए। ये देखिए वैल्यू कम ज्यादा करने के लिए वहीं पर ही प्रोविजन दिया है। ओके, ऑप्शन है, दीज आर ऑप्शनल, आपको जो विजिबल रहेगा वो सिलेक्ट। डिस्प्ले देखिए वहीं पर ही डिस्प्ले दे दिया है, गन पर ही डिस्प्ले दिया है कि आपका वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, वायर जो जा रहा है उसकी स्पीड क्या है, वो सब आप देख भी सकते हैं और कम ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब ऑपरेटर को कहीं हिलने की जरूरत नहीं। अभी जो इक्विपमेंट है ना, ये देखिए अभी इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टडी भी होता है। ओके, ये अभी हम छोड़ देंगे। वेल्डिंग मशीन कितना इनोवेटिव बनाया है। ओके, कैसा भी यूज करो, किधर भी यूज करो, कितना छोटा है, बैकपैक बैग में वो आ जाएगा। ओके, अदरवाइज आपने ट्रेडिशनल वेल्डिंग इक्विपमेंट देखे होंगे, डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। आप ये देखिए, ओके, इमीडिएटली वहां पर वायर उसकी असेंबली कर दो तुरंत, किसी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं।
रेडी। ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान में देखिए, इसको इसमें देखिए उन्होंने कैसे टेस्ट किया इक्विपमेंट को। जो एक्चुअल ऑपरेटर रहेगा ना, उसको कितना गलत तरीके से यूज कर सकता है उसको ठीक से उन्होंने ध्यान में देखिए। अब वो खींचेगा उसको, ठीक है, ऑपरेटर खींच रहा है ना, तो उन्होंने टेस्ट करते समय मशीन को ऐसा टेस्ट किया है कि ऑपरेटर ऐसा खींच सकता है तो कुछ प्रॉब्लम ना है। मैं फिर से चाहे तो बैक जाऊंगा 1 मिनट में। देखिए ऑपरेटर कितने गंदी तरीके से इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो आपके मशीन को दिक्कत ना है। एंड द सेम मशीन ओके, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत इकोनॉमिकल है, एंड इट इज अवेलेबल इन आवर लैब आल्सो। ओके, अब देखिए अंदर कभी कभी अंदर मैनहोल के अंदर जाना है, इक्विपमेंट नहीं जाएगा अंदर, है ना, तो उन्होंने बराबर उतने ही डायमेंशन के हिसाब से बनाया, इतना छोटा, सो दैट यू कैन कैरी द इक्विपमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी इन वेल्डिंग डोमेन। कहीं पे भी आप काम होने के बाद पॉसिबल है ऑपरेटर वो वेल्डिंग इक्विपमेंट को अंदर से बाहर फेंक देगा, है ना, पॉसिबल है, इतने प्यार से तो बाहर नहीं रखेगा। बारिश हो सकती है, तो इक्विपमेंट्स आर नाउ टेस्टेड इन वाटर ऑल्सो, इन आइस कंडीशन ऑल्सो। देखिए मशीन वर्क कर रहा है इफेक्टिवली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फ्रीज के अंदर रखा है, ओके, सॉल्ट वाटर में भी टेस्ट किया है, फ्रीज के अंदर रखा है, ओके, नथिंग विल हैपन टू द इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट ऐसे टेस्ट होकर आ रहे हैं। एंड द थिंग इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो बहुत रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। ओके, इवन सिर्फ रोनिस नहीं, लिंकन के भी इक्विपमेंट ऐसे ही है, लिंकन। ओके, अब ये देखिए वो कभी कभी स्लोप रह सकता है, तो कितने स्लोप तक भी मशीन आपका स्टेबल रहेगा, दैट इज टेस्टेड। 30 डिग्री तक भी आपका मशीन इंक्लाइन रहेगा तो भी कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ओके, ये देखिए मशीन है ना, वो ऑपरेटर फेंकता है ना बाहर, तो उसको हैमरिंग से भी टेस्ट किया हुआ है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इवन उसी के ऊपर आपके स्पार्क्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो अटेम्प्ट यही है कि आपको बताना है कि कैसे एडवांसमेंट हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है और इंडस्ट्री उसे एक्सेप्ट कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बहुत बार स्टूडेंट लोग भी पहले तो उस डोमेन को लाइक नहीं करते हैं, बाद में लाइक करना भी स्टार्ट करे, तो होता है कि उसने उसका नॉलेज ले लिया, लेकिन इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में यूजर है वो इस टाइप के है, उसको उसका नॉलेज नहीं है ऐसे इक्विपमेंट का। उसने शायद ट्रेडिशनल इक्विपमेंट देख के आया हो, तो वहां पे भी फिर उसको इश्यू आएगा। तो व्हाट आई फील कि आप लोग ऐसे जहां जहां पे भी इक्विपमेंट है वहां पे उसका एक्सपोजर लीजिए, ताकि आप फिर इंडस्ट्री वालों को बता सके कि यस एटलीस्ट यू आर अवेयर अबाउट इट। अब ये बैटरी ऑपरेटेड, ओके, अब आजकल सारा बैटरी से ही जमाना चल रहा है ना, हमारी व्हीकल वगैरह जो है वो बैटरी पे ही चल रही है, फ्यूल की जरूरत नहीं है, तो वेल्डिंग भी अभी पीछे नहीं छूटा। ओके, सेपरेटली पावर सप्लाई, क्योंकि कभी कभी जंगल में आपका कोई एक आधा छोटा प्रोजेक्ट है ना, कोई एक स्मॉल इक्विपमेंट है, उसको रिपेयर करना है, लेकिन पावर सप्लाई नहीं है, तो क्या, तो बैटरी ऑपरेटेड वेल्डिंग मशीन, दिस इज वी कैन से वन ऑफ द ग्रेट डेवलपमेंट, बैटरी ऑपरेटेड वेल्डिंग मशीन। हो सकता है बहुत सारे कंसेप्ट आपको पहले से पता हो, इवन ना भी हो, तो ये सेशन आपको वो सारा नया जो कंसेप्ट है एटलीस्ट अवेयर करने का कोशिश करा है। अवेयरनेस कैंप हम इसको कहेंगे कि अवेयरनेस कैंप, आपको एटलीस्ट अवेयरनेस आ रही है इसके बारे में। सॉरी, हाँ मिलती है, बट अभी यहाँ पे फिर क्या है, हमारा मेन पर्पस है कि वो एक आइसोलेटेड लोकेशन पे जो एक छोटा सा काम करना है, जो अदरवाइज पावर की वजह से बंद नहीं हो पाएगा, तो वो पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है।
कितने आवर के लिए वो क्या वर्क कर सकते नहीं चलता है, मतलब 4-4 घंटे, मतलब फिर उसके अलग अलग कैपेसिटी वाली बैटरी है, इवन स्टैंड बाय बैटरी भी देते हैं वो ऐसा, ताकि अगर आपको लगता है कि मुझे 2-3 घंटे का काम करना है और एक लिमिट के बाद का काम है, तो देन उनका खुद का ही रिकमेंडेशन है कि फिर आप बैटरी मशीन यूज ही मत करो, बेटर है आप रेगुलर मशीन यूज करो, बट ऐसे आइसोलेटेड लोकेशन पे वो जरूरी है ऐसा। हैं? सेम सेम, मतलब आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट में कोई जो इफिशियंसी, मतलब कि आपको वो मेटल में उतना हीट मिल गया तो काम सॉल्व हो गया है ना, तो बट यस ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, और कोई किसी का कोई जनरल डाउट, पर्टिकुलर डाउट किसी का? क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो आइसोलेटेड लोकेशन पर है, जहां पर पावर अवेलेबिलिटी नॉर्मली नहीं रहती है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ओके, नाउ यू सी हियर, ओके, ये जो TWI है, TWI, कुछ आइडिया है इसके बारे में? TWI ये वेल्डिंग का नया कंसेप्ट है, और नया नहीं है, ऑलरेडी यूज में हो रहा है। कुछ आइडिया TWI के बारे में? Any guess? द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, ओके, उसका लॉन्ग फॉर्म है द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट। ओके, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वेल्डिंग रिलेटेड बहुत कुछ डेवलपमेंट होते रहता है। तो आप लोग आपके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा मोबाइल पे जो टाइम देते हैं उसमें का 2-5 मिनट इसके लिए भी देंगे, और अगर सिर्फ फाइंड आउट करेंगे कि इन्होंने क्या क्या नया किया है, तो भी आपको बहुत एक अच्छा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, देयर अभी आप मैं वो भी रास्ते बता रहा हूँ कि ये सारा नया इंफॉर्मेशन कहाँ पर ढूंढना है ना। सो द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, इनकी वेबसाइट आप रेगुलरली देखिए। ओके, उनमें वो तुरंत ही कोई नए मटेरियल को उन्होंने कैसे सक्सेसफुली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, या एक आधा कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्ट को उन्होंने कैसे इजीली सॉल्व किया, तो क्या इससे क्या है ना, आपको आपका दिमाग चलाने के लिए और डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके, सो द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पे देखिए, हीट जो है वो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हो रही है ना। मतलब अल्टीमेटली वेल्डिंग करते समय हमें हीट चाहिए जो आपके मेटल को मेल्ट करके फिर सॉलिडिफाई करे, तो हीट आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं उस पर डिपेंड है ना। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन द हीट इज प्रोड्यूस एंड आपका ज्वाइनिंग उससे हो रहा है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बाद में ले लेना, द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट। और भी ऐसे थोड़े से 2-4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट जो है लगभग सभी के पास बल्क में अवेलेबल है ना, इससे कोई अभी छूटा नहीं है। तो आपके वो बाकी पैरेलल जो बिजी एक्टिविटी है उसमें से इसको भी आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। ओके, so how with the help of friction that heat is produced, वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, तो अभी न्यू इनिशिएटिव जो है, इवन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव पिछले 7-8 साल से एग्रेसिवली आए हैं, है ना। उसमें एक इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, तो इस डोमेन में भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव बनाए हैं। ओके, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये हमारे वर्ड नहीं, ये गवर्नमेंट के वर्ड है। ओके, उन्होंने सभी को ये बता के रखा है, इंडस्ट्री वालों को भी, एकेडमिशियंस को भी, कि आप इस तरह से मैन पावर को डेवलप कीजिए। ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सारे जगह पे, इवन ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी हो रहे हैं, ओके, ये इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। ओके, इसके थ्रू ही वो सबको अवेयरनेस कर रहे हैं, बिकॉज सबसे पहला मंत्र है, कोई भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है तो पहला स्टेप जो रहेगा, गेट अवेयर अबाउट इट, ऐसा कुछ है ना। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, तो देन फिर मैं जस्ट एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, जनरल। ओके, सपोज ओके, दो ग्रुप है। ओके, ग्रुप आप लोग आंसर देना है और आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ओके, 2 ग्रुप है। एक ग्रुप ऐसा है
दोनों ग्रुप का टास्क है कि उनको एक बाइसिकल डिजाइन करना है, साइकिल, सिंपल साइकिल ऐसा डिजाइन करना है जो पर्पस सॉल्व कर दे अच्छे से, ओके, और आपका मतलब उसमें दिमाग अच्छे से लगा हो। अब एक ग्रुप ऐसा है, उन्होंने बाइसिकल उनको बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ पता नहीं है, उसके नए नए मॉडल भी पता है, ओके, और सिर्फ पता ही नहीं, उन्होंने उसका यूज भी किया हुआ है ना, यूज भी किया। अब ऐसे ग्रुप को आप बोलोगे कि आप हमारे लिए एक साइकिल डिजाइन करो, तो वो ग्रुप जो साइकिल डिजाइन करेगा उनका डिजाइन, और दूसरा ग्रुप बी ऐसा है कि जिसने साइकिल कभी देखी ही नहीं, साइकिल के बारे में उससे कुछ भी अज्यूम करो, एक वर्चुअल एक एग्जांपल ऐसा, ग्रुप ए है, सब कुछ उसको पता है, सिर्फ पता नहीं यूज करता है, उसने सब कुछ उसका R&D उसने कर दिया, उसका तोड़ मोड़ सब कुछ किया, रिपेयर किया, सब कुछ उसको पता है। अब उनको एक अच्छा बाइसिकल डिजाइन करना है, एक ऐसा टास्क दिया। ग्रुप बी है जिन्होंने कभी बाइसिकल देखा ही नहीं, कभी चलाया ही नहीं और कुछ पता ही नहीं। अब आप बताओ दोनों के डिजाइन में कुछ डिफरेंस रहेगा? ड्रास्टिक डिफरेंस रहेगा, है ना। हो सकता है जो ग्रुप बी है वो भी कोई ना कोई कंसेप्ट डिजाइन कर ही लेंगे, कोई ना कोई कंसेप्ट कर ही लेंगे, है ना, कि भाई ऐसा कुछ बैठने के लिए चाहिए, व्हील चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट फिर तुरंत ही दुनिया उसको बोलेंगे कि यार ये तो आपने 50 साल पुराना डिजाइन बनाया। उनके लिए तो नया है क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, इसलिए उनके लिए तो अच्छा है, ठीक है। बट दुनिया क्या बोलेगी कि अरे ये तो बहुत 50, अभी तो इसका कहाँ जमाना रहा है ना। मैं देखो आपको इसके बारे में बताऊं, इसलिए वो ग्रुप को अगर पता होता कि साइकिल कैसी रहती है और अभी तक के मॉडल में क्या क्या है, वो अगर पता होता तो शायद वो उसके एक स्टेप आगे का डिजाइन करने की कोशिश करते। तो मेन क्या होगा? अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस। मेरा मतलब ये स्टोरी बताने का पर्पस है अवेयरनेस, कि आपको सबसे पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए जो कंपनी वाले भी जो है ना, जब भी कभी आपको नया जॉब में ऐसे लगाते हैं तो 3-6 महीना जो है ट्रेनिंग के लिए इसीलिए देते हैं ताकि आप सब जगह के लिए अवेयरनेस होना है, ओके। इवन अभी एक जनरल चीज, कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी का कोई भी ऐसा मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहला खरीदार अगर कोई होगा, कोई भी हो, एक आधी कार है, 2 व्हीलर है, कोई नया मोबाइल फोन है, कुछ भी है, ओके, तो कोई एक कंपनी ने नया एक आधा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सबसे पहले उसको खरीदने वाला, ठीक है, आम पब्लिक तो परचेस करेगा ही करेगा, बट द वन हु इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड वो कौन रहेगा? उसका कॉम्पिटिटर, है ना, तुरंत ही उसको खरीद लेंगे वो। और पूरा उसका पोस्टमार्टम करके देखने की अवेयरनेस कि भाई क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या है, और इस तरह से वो फिर तब जाके वो उनके प्रोडक्ट में सोच सकेंगे, है ना। अवेयरनेस, दैट्स व्हाई, मतलब ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारा जो है ये अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक आप एक स्टेप आगे फिर नहीं ले पाओ, ओके। तो प्लीज गेट अवेयर, गेट एजुकेटेड, और फिर बाद में आप उसके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। हर एक कोई नहीं सोचेगा, बट शायद हो सकता है कुछ लोगों को उस में डायरेक्शन मिले, पक्का वो अच्छा रहेगा, ओके। अवार्ड्स है, रिकॉग्निशन है। ये लास्ट वाला जो है वुमेन इन वेल्डिंग, ओके, अभी ये सैटरडे को ही, ओके, 4th of October, okay, there was one good program of Indian Institute of Welding at बड़ौदा में, I also attended it, okay। मैं एक्चुअली वो फोटो रखना चाह रहा था बट वो मोबाइल से उसमें ट्रांसफर नहीं हुए, okay। in that particular बड़ौदा center they felicitate many women employees जो वेल्डिंग डोमेन में वर्क कर रहे हैं, ओके, वुमेन एम्प्लॉयज, उन्होंने उसको फेलिसिटेट किया, ओके, बिकॉज उनको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो सो दैट देन ओके पीपल विल गेट मोटिवेटेड, दे विल ट्राई टू डू मेनी गुड वर्क्स इन दैट डायरेक्शन, तो अवार्ड्स लिए, ओके। उन्होंने एक सेपरेट विंग बनाया, वुमेन्स इन वेल्डिंग, ऐसा एक सेपरेट, ओके। वहाँ पर L&T की एक बहुत अच्छी सीनियर लेडी है, आई थिंक L&T मुंबई में जो है, पवई में उनका जो है ना, डॉक्टर रेणु गुप्ता, ओके। उन्होंने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है,
ओके, जहाँ पर जो भी लेडीज लोग जो है जो इस डोमेन में कुछ फ्यूचर, मतलब अगेन नॉट फ्रॉम वेल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आपको वेल्डिंग इंजीनियर बनना है या कुछ ऐसा डिजाइनर बनना है, तो दे गाइड ऑल सच पीपल, ओके, पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली वुमेन्स, ओके, ऑफ एनी डिसिप्लिन, जरूर नहीं कि मैकेनिकली, क्योंकि वेल्डिंग में जो है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। वेल्डिंग ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटर डिसिप्लिनरी वर्क का, दूसरे लोगों को भी उतनी ही जरूरत है उसमें, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिकल इंजीनियर कुछ नहीं कर पाएगा, ओके, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, डोमेन है मल्टीपल डिसिप्लिन वाले लोगों का, ओके, सो ये सारे कंसेप्ट हैं, ओके। एक्टिव, ये जो है प्रोफेशनल बॉडी, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, ओके, देन द वेल्डिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी अलग, इंडिया में ये दो है, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग एंड सेकंड इंडियन वेल्डिंग सोसाइटी, ओके। तो इसमें से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग है ना, इसके आप लोग भी मेंबर बन सकते हैं, ओके, और मेंबर बनने से क्या होगा, आप उनके नेटवर्क में आ गए, ओके, तो वो नेटवर्क आपको बहुत बार हेल्प करता है, बहुत बार हेल्प करता है, और कुछ डेवलप होने के लिए स्टूडेंट लोगों को वो प्रोजेक्ट देने में हेल्प करेगा, या कोई इंडस्ट्री में जाके 6 महीने का इंटर्नशिप करने के लिए हेल्प करेगा, या इवन जॉब देने के लिए हेल्प करेगा, ओके, तो यू कैन एक्टिवली बिकम मेंबर। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही नॉमिनल फी उन्होंने रखा है मेंबरशिप के लिए। देखो उनका सक्सेस मंत्र है, इट इज ऑल दीज आर वेरी बिग प्रोफेशनल बॉडी, रिच बॉडी, रादर सभी इंडस्ट्री वालों ने जनरेट किया हुआ ये बॉडी है, उनके पास पैसे की ऐसी कमी नहीं है, कोई भी एक इवेंट वो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनके पास ह्यूज स्पॉन्सरशिप आ जाती है, बट स्टिल वो हर एक चीज के लिए थोड़ा सा चार्ज रखते हैं, ओके, हर चीज के लिए। इवन हम लोग हमारे स्टूडेंट के लिए जो प्लांट विजिट करते हैं, नॉर्मली हम स्टूडेंट से कोई फी नहीं लेते हैं, बट वो हमें डांटते हैं, दे सेड कि आप उसमें कुछ तो फीस रखो, भला ही 50-100 रुपया रखो, ड्यूरिंग ट्रैवल उन पे वो खर्च कर दो, है ना, उन पे वो खर्च कर दो, बट उसमें फीस रखो। क्यों क्यों करते होंगे ऐसा? वो कुछ पे करने का तो क्यूरियोसिटी रहती उसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, स्टूडेंट फिर इंटरेस्टेड वाले ही आएंगे, है ना। आप ऐसे ही कर दो, देखो आपके पास 1000 लोगों की लाइन लग जाएगी, है ना, तो उसमें से जो रियल इंटरेस्टेड है वो पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी कई कई जगह पे थोड़ी सी ऐसे नॉमिनल फी रखी है ना, तो डोंट गेट अवे फ्रॉम बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अगर सही में किसी का प्रॉब्लम है तो वो हेल्प भी करते हैं, ओके, सो दैट वे यू कैन बिकम दैट मेंबर ऑफ दैट, ओके। ये बहुत डेडिकेटेड कंपनियां हैं जिनका
बैटरी है ओके। ओके ये अलग अलग छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेस, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपके पास अगर अवेलेबल है ना तो इमीडिएटली आपका ब्रांड वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगा। ब्रांड वैल्यू ओके। सो यू सी अलग अलग एग्जाम्स है, आपको वो 1-2 महीने में जस्ट उसका थोड़ा सा स्टडी करके वो एग्जाम देना है। एंड इफ आपके पास ये अगर सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विथ आपका जो रेगुलर एजुकेशन है, वो एजुकेशन के साथ साथ ये एक एडिशनल सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड वैल्यू एडिशन, गुड वैल्यू एडिशन ओके। और आजकल ये ऐसे जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है बहुत सारे जगह पे अवेलेबल। आई थिंक इधर आसपास में अगर आप देखोगे तो शायद औरंगाबाद में हो सकता है इसका एग्जाम ओके, क्योंकि औरंगाबाद में भी अच्छे सेंटर है, और नागपुर हो सकता है। इधर के साइड में तो देन नासिक, मुंबई एंड सूरत ओके, इस जगह पे इसके प्रोविजंस अवेलेबल है ओके। तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। यस अभी ये जो है डेवलपमेंट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, उसके लिए भी काफ़ी वर्क हो रहा है ओके। अब ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, अब इस पे अभी हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, अपना डिस्कशन थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है या लगभग आ रही है उस सबकी ज़रूरत क्यों है। अब आपको 2-4 मिनट आपको बोलना है ओके। यस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ these advanced टेक्नोलॉजीज। अल्दो इसके बारे में हमने शुरू में भी एक दो पॉइंट टच हो गए हैं, बट हम अभी बाकी सारे चीजों को भी टच करेंगे सिस्टमेटिकली। ह्यूमन इंटरवेंशन है तो मिस्टेक ज़्यादा है, ओके लॉसेस ज़्यादा है। ओके लॉन्ग रन देखा तो कंपनी को एबल नहीं है। ओके तो एडवांस टेक्नोलॉजी इनपुट में उसका कॉस्ट ज़्यादा है, गवर्नमेंट उसका कॉस्ट कम है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट ओके। एनी अदर स्टूडेंट में से भी आपको भी किसी को बोलना है कि क्यों ये सारे टेक्नोलॉजी की जरूरत। सॉरी, यस, डिमांड इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड ओके। डिमांड अभी आपका देखो, हर कंपनी कह रहा है कि हमारा एनुअल टर्नओवर है, पहले इतना था अभी इतना हो रहा है। एग्रेसिवली सभी कंपनियों का टर्नओवर एग्रेसिवली बढ़ रहा है ओके, बिकॉज अब कंजम्पशन भी उतना है ना, डिमांड भी बढ़ रहा है ओके। और वन मिनट, हाँ अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं लेस टाइम कंज्यूमिंग है ओके और नीड ऑफ टाइम है ओके। यस, इधर कोई बोल रहा है, हाँ कंफर्टेबल, यूज इज कंफर्टेबल ओके, इससे यस वेरी गुड ओके, उसका यूज जो है कंफर्टेबल है। देखो टेक्नोलॉजी अगर आ रही है लेकिन अगर वो बहुत डिफिकल्ट टू यूज है तो भी वो टेक्नोलॉजी जो है ना ऑटोमेटिकली डाई डाउन हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे इनोवेशन है जो बन रहे हैं और उसकी नेचुरल डेथ हो रही है, नेचुरल डेथ हो रही है क्योंकि वो डिफिकल्ट टू यूज है, डिफिकल्ट टू यूज है। यस, तो आपका टेक्नोलॉजी तो लाना है, लेकिन तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इजी करना पड़ेगी। और कुछ टाइम ओके, आपका टाइम, यस टाइम ये होगा, यस वेरी गुड। अभी बाकी लोग प्लीज थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, आप डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लविंग द टॉपिक ओके। यस ओके, स्किल पीपल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए भी नीड बन रही है ना। अब देखो बहुत बार पिछले 2 डेकेड्स में इंडस्ट्री इसके लिए रोते रहे कि हमको अच्छा मैन पावर ही नहीं है। अब देखो जब तक आप अगर नहीं जुड़ोगे कोई भी किसी भी फॉर्म में तो फिर इंडस्ट्री उसका खुद का सोल्यूशन तो निकाल लेगी, है ना। उन्होंने निकाल लिया है कि भाई ऐसे इनोवेशन से ही क्या। और कोई, मैं उसको कंपैरेटिव वे में दिखाऊंगा कि पहले क्या अब क्या ऐसा, बट फिर भी आपकी तरफ से एनी गेस, लास्ट वन मोर आंसर।
हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं to reduce labor cost. टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। ओके, वेरी गुड। ओके, सो लेट अस सी। तो इसमें क्या था, चैलेंजेस जो है वही आपको पहले तो मजबूर करता है कोई इनोवेशन करे, है ना। चैलेंजेस जैसे मैंने वो एक बिग प्रोजेक्ट दिखाया, ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, आप बड़ी कोई इंडस्ट्रीज में जाइए, ओके, दे आर फुल ऑफ ऑल सच चैलेंजेस। अभी एक नया मटेरियल जो है जिसका इंडस्ट्री बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड करे कि हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए, वही इनकोनेल ये एक ऐसा मटेरियल है। अब हर कोई प्रोडक्ट वाला बोलता है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट इनकोनेल से ही बनाना है। ओके, क्योंकि उनको भाई पता चल गया है कि उसके क्या बेनिफिट है, बट अब उसके प्रॉब्लम्स है। ओके, तो मतलब आप जब मटेरियल शिफ्ट करते हो ना तो चैलेंज आएगा। ओके, तो वो सब यहाँ पर शो किया है। मतलब एक इंडस्ट्री वालों को मैं वो सैटरडे को ही सुना था, जो मैं कहा ना बड़ौदा में एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ, उसने मुझे मतलब वो उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। मैं देखो, अदरवाइज मुझे ऐसे कोई सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, बट वाई आई ऑलवेज अटेंड, क्योंकि उनके पूरे 1-1.5 घंटे के इसमें से हमको ऐसा कुछ एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है जो फिर हमें भी, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरा उनका कहना था कि आजकल इंडस्ट्री क्या सोच रही है कि अगर मैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ओके, अगर मैं एक इंडस्ट्री हूं, मैं नॉर्मली अपना प्लेन कार्बन स्टील या कार्बन स्टील का प्रोडक्ट बना रहा हूं, ओके, मेरे कंपनी की कैपेसिटी 10